Hello students, today I will start kinematic of fluid, and in this chapter we will discuss first of all fluid flow. What is the fluid flow? Okay, so see here rate of flow. What is the rate of flow? Quantity of fluid passing through any section in a unit time. Okay, so this is the rate of flow. So rate of flow is equal to quantity of fluid upon time. If you want to calculate the rate of flow, so first of all calculate the quantity of fluid and find the time in this time the fluid pass through a section in a unit time. Okay, so this is the rate of flow. तो टाइप है मेरे पास में वॉल्यूम फ्लो रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन में टाइम, एंड मास फ्लो रेट, मास of fluid upon time, and next is weight, weight of fluid upon में time. So this is the rate of flow you can see in this slide. And second is fluid flow. Second is fluid flow. So let's consider a pipe in which a fluid is flowing through mean velocity v. You can see here the fluid is flowing from a pipe a mean velocity v. Let in a unit time t. Okay, I consider the time is t. This is a unit time. Volume of fluid is AL. This is the volume. A into में L. Okay, area into में length. So passing through section XX. So I cut is section through the pipe XX. So we want to find out the rate of flow through this section. So first of all calculate the volume of fluid upon में time. Okay, तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन में टाइम, मास फ्लो रेट एम इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन टाइम, वेट फ्लो रेट तो वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन टाइम. ओके, तो यू कैन राइट हियर रो जी ए एल अपॉन टी. तो रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा, गामा इंटू ए एल अपॉन टी. तो दिस इज द फ्लूइड फ्लो. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्लो. तो इट्स very important for your university examination as well as one day examination. Okay, so types of flow, so depending upon fluid property and depending upon property of flow, so there is a two types, mainly two types, depending upon fluid property and depending upon property of flow. So there are two property, first of all fluid property and second one is flow property. So see in the first property, first is ideal and real flow, and second is compressible and incompressible flow. Okay, and in the flow property, first of all see laminar and turbulent flow, steady and unsteady flow, uniform and non-uniform flow. Okay, so we will discuss one by one in this slide. So first of all see ideal and real flow. It's very important. So first of all see what is the real fluid. So real fluid flow implies friction effect. Okay, and ideal fluid flow is hypothetical. It assume no friction. Okay, एक्चुअली में क्या है, ऐसा फ्लूड है ही नहीं आपके पास में, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये फ्लूड कि अगर वो फ्लो हो रहा है तो वो फ्रिक्शन ना दे. फ्रिक्शन जरूर देता है. ठीक है, कोई भी आपके पास में फ्लूड हो तो जो फ्रिक्शन नहीं दे रहा है दैट इज रियल, सॉरी आइडियल फ्लूड, एंड जो फ्रिक्शन दे रहा है दैट इज रियल फ्लूड. तो सभी क्या है, रियल फ्लूड है अगर एक्चुअल में मैं देखूंगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो. ओके, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल. तो इसमें क्या करना है आपको, देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है इसमें कि आपके पास में देखिए कंप्रेसिबल मीन्स कंप्रेस हो रहे हैं. ठीक है, फ्लूइड जो है क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है. तो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा भैया इसकी डेंसिटी पे. देखिए अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा. अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल होगा. ओके,
तो एज आई टोल्ड यू कि देखिए, अगर आपके पास में कंप्रेसिबल का केस बता रहा हूँ, कंप्रेसिबल फ्लो इज दैट टाइप्स ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ओके, और एक अदर वर्ड्स में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ लाइक दैट, डेंसिटी इज नॉट, द डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो डेंसिटी मैं रो से डिनोट करता हूँ डेंसिटी को, तो रो इज नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड इनकम ये क्या हो गया मेरे पास में, कंप्रेसिबल, और इनकम्प्रेसिबल में जो डेंसिटी है वो क्या होगी आपके पास में, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखना है अपना। यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी शो किया हुआ है कि आपके पास में जो वॉल्यूम है यहाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे आपका इंटरव्यू हो रहा हो या फिर आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, लेमिनार फ्लो क्या होते हैं, ये डिफाइन एज द टाइप्स ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल फ्लो अलोंग वेल डेफिनाइड पाथ। ओके, तो इसमें क्या होगा आपके पास में, लेमिनार फ्लो में जो आपके पास में फ्लूइड है वो एक डेफिनाइट, मतलब एक स्ट्रीम लाइन में चलेगा। जैसे आप देख रहे हो ये आपके पास में फिगर ए है, फिगर नंबर ए में आपके पास में जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, वो एक डेफिनाइट पाथ में चल रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहे हैं। तो दिस इज द लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो जिग जैग फॉर्म में फ्लो करेंगे, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, जो आपके पास में देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। रेनॉल्ड नंबर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लो, लेमिनार एज वेल एज द टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो कम टू नेक्स्ट, study and unstudy flow. So what do you mean by first of all study? It is the flow in which condition of flow remain constant. Okay, the flow condition will be same, constant रहेंगे आपके पास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में स्टडी। और कांस्टेंट तो रहेंगे, मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिखा भी है मैंने, देखिए, इट इज द फ्लो इन विच कंडीशन ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट with respect to time at a particular section, but the condition may be different at different section. ओके, एक पॉइंट पे बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि मतलब सभी जगह नहीं, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेंगी चीजें। मतलब आपने कोई पॉइंट लिया, वहां पे क्या होंगी, वहां पे कांस्टेंट होंगी। अदर कोई पॉइंट लिया, वहां पे कांस्टेंट होंगी। ठीक है, तो dv अपॉन में dt ये क्या होगा आपके पास में, कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में स्टडी फ्लो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आपको एक बार इसको मतलब एक अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, देखिएगा। स्टडी फ्लो इज डिफाइन एज दैट टाइप्स ऑफ फ्लो, मतलब ये वो टाइप फ्लो है इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एट एनी पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होंगी। ओके, और अनस्टडी में क्या होगा भैया, चेंज हो जाएंगी। इसमें इसका उल्टा होगा, अनस्टडी आ गया है ना, तो चेंज होंगी, बिल्कुल चेंज होंगी। तो v इक्वल टू वेरिएबल आएगा आपके पास में। तो ये हो गया मेरे पास में स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ओके।